हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी के अपन ने क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कर लिए। आज आगे अपन पढ़ते हैं माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट्स से रिलेटेड टॉपिक्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगले वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स के मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ला रहे हैं, 2-3 वीडियोज़ में। इस चैप्टर के जो बोर्ड से रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन अगर उसको पूरे करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर का नहीं आता। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर एंड कोफैक्टर की बेसिक डेफिनेशन समझ लीजिए। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith row and jth column in which aij lies and denoted by mij. Means mij or minor of any element is a determinant which obtained by deleting that row and column in which that particular element lies. Means it is for all elements. Minor exist for each element of matrix. So let A equal to 2/2 matrix B C D is 2/2 matrix. ठीक, 2/2 matrix. Then element position according to position is written as A11, A12, A21, A22. It is position of 2/2 matrix. तो अब अपने को देखना है कि हर एलिमेंट के लिए क्या माइनर बनेगा। तो माइनर फॉर aij और a11 के लिए अपन देखें अगर, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, हम m11 से डिनोट करेंगे। अब m11 के लिए क्या करना है अपने को, m11 जिस भी रो और जिस कॉलम में है उसके एलिमेंट डिलीट कर देना है। तो a11 यानी a, तो a के लिए इस रो को डिलीट किया, इस कॉलम को डिलीट किया, बचा सिर्फ क्या अपने पास d। तो d को किस में रखना है, डिटर्मिनेंट में रखना है, वैल्यू d आई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। a12 के लिए इसको किससे डिनोट करेंगे, m12। अब m12 की पोजीशन ये b है, तो इस रो इस कॉलम को डिलीट किया, बची वैल्यू c, यानी c डिटर्मिनेंट ऑफ c इज आल्सो इक्वल टू c। फॉर a21 फर्स्ट रो ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो कंप्लीटेड, एंड फॉर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो a21 माइनर डिनोटेड बाय m21 इक्वल टू determinant of 21 first column and second row deleted, then b equal to b, and a22 for a22 m22 is equal to second row second column deleted, then we get a, or determinant of a is a. If these elements are minor of each particular element, means minor of a is d, minor of b is c, minor of c is b, minor of d is a. Now let's see the cofactor. And cofactor of any element aij denoted by aij, in NCERT book is mentioned in symboling by aij, or according to name we can write it cij and is equal to -1 raised to power I plus j and value of mij which get be in minor sections. Then for same question, a equal to a b c d, find cofactors for each element. Then c11 equal to
C11 means for first element A. For A, according to formula Ci is equal to minus 1 की power I plus j. Here I is 1 and j is 1. 1 plus 1 and minor. Minor means element obtained by deleting row and column. Then AB and AC column removed, then we get D. Square of 1 plus 1 क्या हुआ? पॉजिटिव एक्सपोनेंट माइनस 1 की पावर 2 इज पॉजिटिव वैल्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज डी. सिमिलरली C12 minus 1 raised to power 1 plus 2 and for B minor is AB removed, DB removed, then we get C, then value is minus C. First row all element cofactors of all element of first row obtained, then we get for second row A21 minus 1 raised to power 2 plus 1. First column first row deleted, first column second row deleted, and we get B odd power minus 1 3, then negative value and B. Or C22 minus 1 power 2 plus 2, second row and second column deleted, then we get A. Here exponent of minus 1 is 2 plus 2, 4 is even number, therefore exponent of minus 1 raised to power 4 is positive or A. Therefore we get all cofactors D, minus C, minus B and A. These are cofactors for each element. Okay. For arrangement of this matrix, cofactors according C minus B A. Okay. Now see here a basic and important tricks for solve this question. By 2 by 2, only for 2 by 2 if we want to get all cofactors of given matrix, then C equal, what should be done? First, position of A and D change, D here, A here. Position of C and B also change, B here, C here. Change the sign of BC. Is matrix obtained by cofactor. Clear? Let's solve a 3 by 3 question for minor and cofactor. For matrix A equal to 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1, find minor and first we direct calculate cofactors, find cofactors. Here 3 types question should be first. First type for all element, and second for second row or third row. Anything should be asked. According to second column, any type question should be asked for given matrix. Then first we complete find all factors for each element in which all parts are covered. If we find all cofactors of given matrix, then such type
for second row, for third row. All such questions are covered. Then let's start for first row. A11, A11. Cofactors is denoted by C11 and equal to minus 1 raised to power 1 plus 1, and determinant of element which obtained by removing A11. A11 position of A11 this. Hide this row and this column. Then we get 1 0 0 1. 1 0 0 1. Similarly C12 minus 1 raised to power 1 plus 2 for 0 second element. Hide this row and this column. Then we get 2 1 and 0 1. Similarly C13 for 1. Hide first row and third column. We get 2 1 1 0. 2 1 1 0. Here minus 1 raised to power 1 plus 3. For second row को अकॉर्डिंग चलें तो C21 minus 1 raised to power 2 plus 1. Hide second row and first column. Second row and first column. Then we get 0 1 0 1. 0 1 0 1 and 0 1. For C22 hide second row and second column. Second row and second column. Then we get 1 1 1 1. Minus 1 raised to power 2 plus 2. 1 1 1 1. C23 minus 1 raised to power 2 plus 3. For this element hide second row and third column. Then we get 1 0 1 0. 1 0 1 0. Third row C31 minus 1 raised to power 3 plus 1. Then hide third row and first column. Third row and first column. Similarly hide. Then we get 0 1 1 0. C32 minus 1 raised to power 3 plus 2. Third row second column. Third row complete, second column. Then 1 0 1 2 1 0. 1 2 1 0. And C33 minus 1 raised to power 3 plus 3. Third row third column. Then we get 1 2 0 1. 1 2 0 1. Then calculate all these values. Exponent of minus 1 is even number. Then we get positive value. 1 minus 0. Then we total plus 1. Here negative value 2 minus 0. Then minus 2. Here exponent of minus 1 is 4. Therefore positive value 2 into 0 0 minus 1. We get minus 1. Here minus 1 raised to power 3 is negative. Therefore 0 minus 0 is 0. Minus 1 raised to power 2 plus 2. We get positive value. Plus 1 minus 1 0. Here exponent of minus 1 is 2 plus 3 5 is negative. 0 minus 0 0. Here minus 1 raised to power 4 positive value. 0 minus 1 equal to minus 1. Minus 1 raised to power 3 minus 0 minus 2. Total positive 2. Here positive value 1 minus 0 1. Therefore C equal. Now we write first row के according. First row, second row and in third row. 1 minus 2 minus 1 1 minus 2 minus 1 0 0 0 and minus 1 to 1. Minus 1 to 1 is matrix obtained by cofactors of matrix. Okay.
हियर बेसिक प्रॉपर्टी एक्सपेंशन से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ Cij। जस्ट बिफोर दिस we find the matrix cofactors for any matrix. So where Cij is matrix obtained by cofactors. Let's see another example to find transpose of matrix. Find adjoint of A if A equal 2 1 3 4। तो चलिए देखिए अपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन एज ट्रांसपोज ऑफ Cij। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पता करेंगे कि इसका कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले कोफैक्टर्स के लिए वही सारे स्टेप फॉलो करने हैं फर्स्ट। दूसरा हम इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अपन कर रहे होंगे सीधे Cij के लिए जो ट्रिक बताया उसको यूज कर लो। क्या करना होता है, 2 4 की पोजीशन बदलो, 4 2 1 3 की पोजीशन बदलो, 1 3, इन दोनों का साइन चेंज कर दो। ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स आएगी। अब कैसे आएगी देखो, सॉल्व करके देख लेते हैं। C11 -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 एंड फॉर 2 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कर लो, 4 बचा, मिला -1 रेज़ टू पावर 2 पॉजिटिव वैल्यू 4। C12 -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 एंड 1 2 के लिए इन दोनों को हटाओ, 3 बचा, नेगेटिव का 3। C21 -1 रेज़ टू पावर 2 + 1, 2 + 1 के लिए 2 3 3 4 को हाइड कर लो, 1 बचा, यहाँ ऑड पावर -1। C22 -1 रेज़ टू पावर 2 + 2, इसके लिए इन दोनों को हाइड करो, क्या बचा 2, इवन पावर +2। तो Cij इक्वल टू 4 -3 -1 एंड 2। बाई डायरेक्ट मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो Cij आ गया। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल Cij, ट्रांसपोज ऑफ Cij करना है 4 -3 -1 एंड 2। ट्रांसपोज में क्या करते थे, फर्स्ट मैट्रिक्स वाले चैप्टर में अपने पढ़ा, किसी का ट्रांसपोज निकालने के लिए रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। मान लो सपोज 4 3 इधर आ गया, इस तरफ -1 2 इधर आ गई, ये वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, सम प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए इसके जो आपके काम आने हैं। इसी से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका वेरिफिकेशन अपन करते हैं। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आएगा, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो देखिए फॉर इस सेम एग्जांपल के लिए अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो हियर ए इक्वल टू 2 1 3 4 एडजॉइंट ऑफ ए अपने को मिला है 4 -3 1 2। डिटर्मिनेंट कितना मिल जाएगा देखिए, 4 2 जा 8 -3, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आएगी। अब इसी तीनों चीजों का यूज करके यहां इसका वेरिफिकेशन करते हैं। LHS एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए 4 -3 -1 and 2 into A 2 1 3 4। मल्टीप्लाई कर लो, 4 into 2 8
-1 इंटू 3 -3, 4 इंटू 1 4, -1 इंटू 4 -4, -3 इंटू 2 -6, 2 इंटू 3 6, -3 इंटू 1 -3, 2 इंटू 4 8. Here we get 5 0 0 5 और 5 कॉमन ले लें अगर तो 1 0 0 1 5, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये हो गया LHS से. RHS अपना कितना है? नाउ A टू एडजॉइंट ऑफ A. फर्स्ट गिवन मैट्रिक्स लिखो 2 1 3 4 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 -3 2, 4 2 जब 8 -3 2 -2 प्लस 2 3 4 जब 12 -12 -3 प्लस 6 प्लस 8 सॉरी 8 -3 5, 12 -12 0 0 and 5. Here also we take 5 as common 1 0 0 1 5 into identity matrix. Then that relation is verified, means adjoint of A into A equal to A into adjoint of A is equal to identity matrix into determinant of A. इसी का यूज, इसी रिलेशंस का अभी आगे हम यूज करेंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए. तो अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी. टू टाइप्स की मैट्रिक्स हैं जो इसमें आगे यूज होंगी, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर. सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर if determinant of A equal to 0 or if any square matrix is non-singular if determinant of A not equal to 0 and invertible matrix. थर्ड अपने को आगे पढ़ना है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. इनवर्स मैट्रिक्स का फाइंड करने के लिए एक तो रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अपन मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. यहाँ अपन पढ़ेंगे कि एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू यूज करके कैसे अपन क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं. एक दूसरा मेथड है, जब तक एलिमेंट्री बुक में नहीं, पेपर में नहीं कहा होता तब तक अपन इसी मेथड का यूज करते हैं. इसे फार्मूला मेथड कहते हैं. ठीक है, तो किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा उसके लिए अपने को पहले ध्यान देना है. ओके, तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल if and only if determinant of A not equal to 0 means नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. किसी भी केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट अपन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी उन्हीं का अपने को इनवर्स मिलेगा. तो फार्मूला क्या होगा, एंड डिफाइंड बाय A इनवर्स इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A. ये देखो मिला कहाँ अपने को. अभी हमने रिलेशन वेरीफाई किया कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू कितना आया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A आया था. अब अपने को पता है कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट था. ठीक है, अब अगर हम क्या लगा दें
दोनों तरफ ए इनवर्स लगा रहे हैं, तो ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स इंटू आई एक साथ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग कर दो, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अलग कर दो। अब ए इनवर्स इंटू आई क्या बना, ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सेम, एडजॉइंट ऑफ ए बचा। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ए को इधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी ये कहाँ आ जाता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, पहले ये चेक कर लेंगे डिटर्मिनेंट उसका क्या आ रहा है। डिटर्मिनेंट अगर जीरो नॉन जीरो नंबर्स है तो एडजॉइंट निकाल के इस फार्मूले पे पुट कर लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन इनवर्स फाइंड करने का। फाइंड इनवर्स इफ ए इक्वल 2 4 3 2। ओके चलिए, तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, पहले तो यही चेक करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स 2 × 4 8 3 1 जा 3 5 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। सेम प्रोसीजर से अपन इसको लिखेंगे भी, since determinant of a not equal to 0 therefore it is non singular and a inverse exists. Now find cofactors C11 -1 raised to power 1 plus 1। इसके लिए इन दोनों को ड्रॉप करो, 1 का डिटर्मिनेंट पॉजिटिव 1। C12 -1 raised to power 1 plus 2। इसके लिए इसको ड्रॉप करो, 3 -3 आया। C21 -1 raised to power 2 plus 1। इस एलिमेंट के लिए 1 बचा और यहाँ 4 आएगा। यहाँ मिला -1। C22 के लिए -1 2 2। इस एलिमेंट के लिए 2 बचा, आगे अपना प्लस का 2। तो Cij इक्वल टू, इनको रो में लिखो 4 -3 -1 and 2। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, इसी का ट्रांसपोज कर दो 4 -3 -1 and 2। ये मिल गया अपने को एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसी का यूज करके फार्मूले वैल्यू पुट कर लेंगे, अपने को मिल जाएगा इसका इनवर्स। देयरफॉर ए इनवर्स इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें वैल्यू पुट करो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 5, तो 1/5 adjoint of A is 4 -1 -3 and 2। then A inverse equal to 5 से डिवाइड कर दो सबको, 4/5 -1/5 -3/5 and 2/5। अब ये अपना सही है या गलत है तो चेक करने का पीछे अपन तरीका सीख चुके हैं कि कोई भी इनवर्स सही होगा या गलत होगा। तो कैसे वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के लिए ये सिंपल सा ट्रिक है, ए इनवर्स इंटू ए क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ रहा है तो अपना आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो फॉल्स है। अब इसको देखो चेक कैसे कर लेंगे, चेक कर लेते हैं यहीं पे वेरिफिकेशंस के लिए। इसकी वैल्यू निकाल लो, ए इनवर्स इंटू ए। तो ए इनवर्स इसको यही यूज कर ले रहे हैं, बगैर अपान वाला कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 4 -1 -3 2 इंटू ए गिवन मैट्रिक्स 2 1 3 4। इसी को कैलकुलेट कर लो, 1/5 4 2 जा 8 -3 4 1 जा 4 -4 -3 2 जा 6 2 3 जा 6 -3 प्लस 8 1/5। यहाँ 5 बचा, 0 बचा 0 बचा 5 बचा, 5 और कॉमन ले लें तो 5/5 1 0 0 1, यानी क्या बचा, सिर्फ 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच रही है।
देयरफॉर आवर आंसर इज राइट। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपन किसी का भी इनवर्स 2/2 3/3 का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 4.2 और 4.3 के एक्सरसाइज, अब आप लोग 4.3 4.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ NCERT और अदर बुक रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। यू कैन गिवन क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, यूज ऑफ डिटर्मिनेंट in solving the linear equation and another use of matrices and determinants.